بے محمد کی قسم بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن سارے بزرگوں کا احترام محمد کے بعد کرتے ہیں۔ ایسا بزرگ ہم نے نہ مانا ہے، نہ مانیں گے، نہ پکڑا ہے، نہ پکڑیں گے کہ اس کی بات کو فاطمہ کے بابا کی بات سے زیادہ عظمت ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو حقیقت حال بتائی، وہ اکابرین میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، پھر میں نے عام لوگوں کو اس جماعت سے بچانے کے لیے، ان کے غلط اور باطل عقائد عوام الناس میں عام کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی۔ علامہ ڈاکٹر صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے، زندگی کے ایام پورے کر رہے، ان دنوں میں عجیب و غریب افکار سے ہمارا واسطہ پڑ رہا۔ مختلف جماعتیں دعوت و تبلیغ کے نام پر ہمارے ملک سعودی عرب میں باطل نظریات پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جن کی ایک مثال تبلیغی جماعت ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، دعوت توحید کو ناکام کر کے اس کی جگہ پہ دوسری فکر کو لایا جائے۔ یہ کہنے والوں کہ عرب دنیا ہمارے ساتھ کتنی ہے، یہ عرب دنیا کا علامہ ہے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا نام لے کر کہا میرے بعد اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، رجوع کرنا ہے تو وہ صالح الفوزان کی طرف کرنا۔ وہ فرماتے ہیں ان سب کا مقصد دعوت توحید کو مٹا کر دوسری فکر لانا ہے۔ غور کریں تو ان کے اہداف اور مقاصد ان لوگوں سے مختلف نہیں ہے جو سابقہ ادوار میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہ شیطانی مرض لاحق ہے کہ کس طرح توحید کی دعوت کو ختم کیا جائے۔ سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے مگر طریقے مختلف ہیں، ان سب کی منزل ایک ہے، کارروائی کا انداز الگ الگ ہے۔ نہیں یقین تبلیغ نصاب کو اٹھائیے، آپ کو اس میں حکایات صحابہ ملیں گی، فضائل نماز ملے گا، فضائل درود ملے گا، فضائل ذکر ملے گا، فضائل صدقات ملے گا، فضائل حج ملے گا، فضائل توحید، کتاب التوحید، ان کا کتاب توحید سے لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ توحید کو ہٹ کر ختم کر کے اس دعوت کو مٹا کر صوفیت کی تحریک کو لانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا، شیخ صالح فوزان کے الفاظ سنیے، ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تو یہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سعودی عرب کا رخ نہ کرتے، یہ پہلے اپنے ملکوں میں جاتے، وہاں اصلاح کرتے اور وہاں پر شرک اور کفر کو مٹاتے، توحید کی تحریک کو برپا کرتے، بلکہ ان کا مقصد تو ہمارے ملکوں میں موجود توحید کی برکات کو، دعوت کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ان ملکوں کو صحیح رستے سے ہٹا کر اپنے ملکوں کی طرح باطل طریقوں پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ فتنہ، فساد، اختلاف و تعصب اور فرقہ بازی کا بیج بو رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک میں اتفاق ہے، رواداری ہے، حکمرانوں اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہے، افراد اور جماعتیں خوشگوار ماحول میں پل رہی ہے، یہاں توحید کی نعمت موجود ہے، اس کی برکت ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے، شریعت کی بالادستی ہے، حدود کا نظام قائم ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، حدود کا نظام قائم ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مکاتب ہیں، حکومتی جہاز ہے جو کام کر رہا ہے، شرعی اصول و قواعد کی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے چاہا کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے اور اس ملک میں دوسرے ملکوں کی طرح افراتفری، عقیدے کا بگاڑ، شرک و بدعات اور خرافات کو رائج کر دیا جائے۔ اگر یہ مقصد نہیں تو شیخ صالح فوزان کا سوال سنیے، اگر یہ مقصد نہیں تو بتائیے یہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کس لیے آتے ہیں؟ ان ملکوں کو چھوڑ کر جہاں شرک و بدعات اور جہالت کے اندھیرے، ان ملکوں کا سفر کرتے ہیں جہاں عقیدہ توحید کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ یہ ان ملکوں کو کیوں چھوڑتے ہیں جہاں پیر بابا الو والا سندھ کے میمن گوٹھ میں بیٹھ کر پسند آنے والی لڑکی سے کہتا ہے تیرا علاج رات کو 2 بجے کیا جائے گا، کلی آئی مانو نہ لے آئی ہیں، اور وہ بی بی پہنچ جاتی ہے اس کے پاس، بابا جی علاج کروانے آ گئی ہوں، ماں کو ساتھ لائی ہوں۔ کہا پاگل ہے، تجھے منع نہیں کیا تھا ماں کو نہ لانا؟ ماں جی آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹی کا علاج کرنا ہے، کڑی نو کلی اندر آن دے۔ وہ اندر آ گئی، کہا دوپٹہ اتارو۔ کہا پیر جی میں تو علاج کروانے آئی ہوں۔ کہا صوفیوں کے علاج کا پہلا گولا یہی ہے کہ دوپٹہ اتارا جائے گا۔
اس نے دوپٹہ اتار دیا, کہا قریب ہو جا, قریب ہوگی, اور قریب ہو جا, اور قریب ہوگی, اور قریب ہو جا. جو گوڈے نہ گوڈا رل گیا, پیر جی پھونک مارنی شروع بھی کرو. کہا پھونک کے لیے لازم ہے کہ دوپٹے کے بعد قمیض بھی اتارنی پڑے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ الو والا بابا, اس الو کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ عام لڑکی نہیں, ٹیلی ویژن والوں کی عورت ہے جس نے خفیہ کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے, مائک بھی لگایا ہوا ہے, تیری ساری بدماشی ریکارڈ کر رہی ہے. جب اس نے کہا کپڑے اتارو, کپڑے تو نہ اترے, کیمرے والے اندر آ گئے. الو والے بابے نے اپنا منہ چھپا لیا. آپ اس کو لاؤ, ہم کر دیں گے. بہت مہربانی ہوگی آپ کی. جاؤ. دوسرا دن میمن کوٹ, وقت رات 12:30 بجے. ناظرین اس وقت دوسرا دن ہے, ہم لوگ موجود ہیں میمن گوٹ میں. میمن گوٹ وہ جگہ جہاں پر ہم نے کل ان خاتون کو بھیجا تھا ایک الو والے بابا کے پاس جو بیوقوف بنا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کل کیا دیکھا تھا اندر. کل میں اندر گئے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے, تو اس کو دیکھے بابا بیٹھے ہوئے ہیں. بابا کے ساتھ 4 آدمی تھے بیٹھے کے. دیکھے میں نے جب اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو اتنی رات کو لے کے آؤ. تو میں نے کہا اتنا رات کو تو لے کے نہیں آ سکتی میں اپنی بیٹی کو. بولے اتنی رات کو لے کے آنی پڑے گا. یہ تو بابا ہمیں یقین نہیں لگتا کہ بابا ہے, یہ تو 2 نمبر لگ رہا ہے. آپ نے ان کو بتایا کہ آپ غریب عورت ہیں اور ہاں بتایا میں نے, 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے, 1 سے 1.5 لاکھ تک. آپ اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں اندر جانے کے لیے. جی. کیا کہیں گے اندر جا کے. میں یہ کہوں گی کہ میں ان کے ساتھ آئی ہوئی, میری امی بنی ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ آئی ہوں علاج کے لیے. اور مجھے جو ہے میرے شوہر ڈیوورس دینے کے تیار ہے, کیونکہ بچے ہے نہیں میرے پاس. بچے کے لیے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں علاج کے لیے. اس وقت یہ لوگ جا رہے ہیں اس بابا کے جھگی کی طرف جہاں پر یہ خاتون کل گئی تھی. اور آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور ان کے کالر مائک لگا دیا گیا ہے. کالر مائک لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آڈیو اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ آڈیو ہم تک پہنچتی رہے گی, اور اگر ایمرجنسی ہوگی تو فوری طور پر ہم ایکسس اس جگہ تک کر سکیں گے. اس وقت آپ لوگ جائیے, ہم لوگ آپ کو پیچھے سے کور کریں, ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ دور ایک جھکی ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی. یہ وہ جھکی ہے جو الو والے بابا کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے. بہرحال اس طرح کے بابا کئی جگہ پہ موجود ہے اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں مختلف بہانوں سے, بیوقوف بنا کے, غلط علاج کر کے. ناظرین ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس جھگے کی طرف جہاں پر یہ بابا ہے. وہ 2 خواتین اس وقت جھگی کے اندر چلی گئی ہیں. کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. ہمیں دیکھ کر شاید یہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پر کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں. اس وقت ہم باہر سے موجود ہیں, باہر سے شوٹ کر رہے ہیں, کافی دور موجود ہیں. لائٹ بالکل ہلکی کر دی گئی ہے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے کہ یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس وقت وہ 2 خواتین اندر ہیں, ہمیں ان کو آڈیو بھی پہنچ رہی ہے اور ہم بالکل تیار ہیں اندر جانے کے لیے. ناظرین میمن گوٹ میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں ایک الو والے بابا لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا علاج کرتے ہیں. ہم حقائق کو جاننے کے لیے پہنچے بغیر پولیس کے, تاکہ جو کچھ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے سکون سے ریکارڈ کیا جا سکے. اس ریکارڈنگ کے لیے ہم نے 2 خواتین کو الو والے بابا کی جھگی میں بھیجا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ بابا کا طریقہ علاج یا طریقہ واردات آخر ہے کیا. آئیے دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ بابا نے عورت کو آدھی رات میں اپنی جھگی میں بلوایا تھا تاکہ صحیح سے علاج کیا جا سکے. ہاں بابا, ہاں بابا, میں اپنی بیٹی کو لے کے آ گئے. اب لیجیے, بتائیے آپ. کرنا پڑے گا سمجھے, اور بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں اس کے اوپر. تو خون کیسے پلاؤں گی میں, الو کو خون کیسے پیے گی بتانا تم اپنی. ہاں بابا, کیسے علاج کر رہے ہو آپ, کون سے علاج کر رہے ہو. ہم اس کا علاج کرتے ہیں الو کے خون سے جی اور بلی کے خون سے. جی ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ یہ خون جو ہے نا الو کا, یہ تمہیں پینا پڑے گا. کیسے پئیں گے بابا کے. کسی بھی طریقے سے آپ کو پینے کا ہے. بہت جگہ علاج کروایا, ہر جگہ گیا, کوئی کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا, اور آپ ہی کے پاس آیا آپ کے علاج کے لیے, اور آپ نے بلایا ہمیں آدھی رات کو. اس وقت پوری طرح سے لائٹ کو آف کر دیا گیا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں ہم اندر کا سینیریو آپ کو دکھانے کی, اندر کا ماحول آپ کو دکھانے کی, تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اندر آخر ہو کیا رہا ہے. آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ خواتین اس وقت بات کر رہی ہیں اس الو والے بابا سے. بابا کوشش کیجیے, دیکھیے اس کی اولاد نہیں رہا, بہت مہربانی ہوگی آپ کی. آپ تو میرے شوہر مجھے ڈیوورس بھی دینے کے تیار ہو گئے. نہیں ہوگا. ہم آپ کو جو نا آپ کی گود بھری کر دیں گے. ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے اولاد آپ کو. کوئی ایسے بتا دیجیے آپ کیسے حال ہوگا یہ مسئلہ. ہاں, یہ تو بلی کا, یہ تو اس الو کا, یہ تو خون نہیں پی سکتے بابا. یہ ہمیں
ये हमें सब करना पड़ेगा उसके और लिए। आप इतना हसीन, आप सुन सकते हैं बाबा इस वक्त खवातीन को मोटिवेट कर रहा है कि वो खवातीन बाबा की जो भी बात कहे उसको माने। वो समय में करना आपके पड़ेगा पास ना। आपकी उम्मीद लेके आए, आप कुछ कीजिए। यहाँ पर पुलिस को साथ न लाने का मकसद ये है कि पुलिस की आमद से अक्सर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और जो कुछ दिखाया जाना चाहते हैं हम लोग वो कुछ नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए पुलिस को साथ नहीं रखा गया ताकि हम ये जान सकें किस तरह के बाबा जो होते हैं वो क्या वाकई ढोंगी होते हैं या फिर वाकई ये लोग इलाज कर रहे होते हैं और जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद जैसी नेमत भी अता करवा रहे होते हैं। किस तरह से ये जानते हैं। इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी और ये अकेले में होगा, अच्छा, अकेले में होंगे तो- आप नहीं होंगे। आप भी जाएंगी, बाहर जाएंगी, फिर मैं इससे बात करूंगा, इसका इलाज मैं करूंगा और इसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। जी इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे, इसकी गोद हरी भरी नहीं होगी, होगी। देखिए और कोशिश कीजिए। हाँ, आप जाएं थोड़ा बाहर, आपकी दुआ से हमें आप जाएं थोड़ा बाहर। कि हम लोग काफी ज्यादा दूर मौजूद हैं, अंदर हमें साफ तौर पे नहीं दिख रहा है लेकिन आवाजें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि बाबा ने अपने बंदों को बाहर जाने के लिए। जो हम कहेंगे वो तुम करोगी। सही। ये उतारो दुपट्टा। ये क्या करो? अपने मकसद की बातें करना शुरू हो चुका है जिससे ये पता चल रहा है कि इस तरह के जो गंदी जहनीत के लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रूप धार के वो लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है। अगर आप और कुछ कहे तो वो भी करे। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम जो कह रहे हैं कम से कम वो तुम करो। सर से दुपट्टा उतारो। अजीब बाबा, कैसे इलाज करते हो आप? यहाँ से खून से इलाज करते हैं, उल्लू के खून से इलाज करते हैं। ये वो बाबा होते हैं जो खवातीन को की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि हमेशा इन लोगों के ऊपर एक दरिंदगी सवार रहती है। इसी तरह के बाबाओं की वजह से जो है वो जो सही काम कर रहे होते हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग, वो खानदान जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं वो ऐसे लोगों के पास हरगिज ना जाएं, हरगिज किसी पे भरोसा ना करें। इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चलो उतार दिया। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर ऊपर करो अभी, जी और थोड़ा ऊपर करो। ये दिखाना हमारा काम है। आला हुक्काम इसका नोटिस लेंगे और यकीनन बहुत जल्द पुलिस की तहवील में होंगे ऐसे लोग। इस वक्त काफी देर हो चुकी है, वो दो खवातीन अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब पता करते हैं कि अंदर क्या। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनसे बात क्या कर रहे थे। एक से जाओ, जाओ उधर से, जाओ इसको। आप इनको लेके क्या बात है? जाओ जाओ आप एक सेकंड, आप लोग बाहर जाएं। आप लोग बाहर जाएं। एक सेकंड। जाओ इधर से। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं। चलें, आप लोग बाहर चलें। निकलो इधर से। बाबा निकलो, क्या निकलो? आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा यहाँ पर कुछ उल्लू रखे हुए हैं। ये बाबा की शोहरत है, मशहूर हैं बाबा, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। निकलो, चलो। आपसे दो बातें करनी है कोई बात मत। नाज़रीन। ये इस वक्त दो खबर आपको ये शायद आपको ये नहीं पता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो दो खवातीन जो हैं वो क्या कर रही थी, आपको पता है वो क्या कह रही थी? उसको छोड़ो आप, इसको भी नहीं भरो। नाज़रीन, भरो इसको, चलो निकलो, आप निकलो, आप निकलो, पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। नाज़रीन, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये बाबा? कैमरा बचाएं। निकलो, नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि निकलो इधर से। काफी सारे लोग आ गए। हटो, झगड़ा हो रहा है, पीछे हट जाओ, निकलो इधर से। निकल जाओ। निकलो इधर से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए हैं और जिन्होंने हमें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल दिया है। हमारा मकसद जो था शायद वो पूरा हो चुका है। आप लोगों को ये चीजें आइडिया हो चुका है कि इस तरह के लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं। एक दफा फिर हम अंदर जाएंगे, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मेमन गोट में उल्लू वाले बाबा ने जो कुछ खवातीन से कहा वो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका था। जब हम अंदर गए तो बाबा और उसके मुरीदों ने हम पर हमला कर दिया और हम फौरी तौर पर झुग्गी से बाहर निकल आए। लेकिन जब हम दोबारा अंदर जाने का प्लान कर ही रहे थे कि खवातीन ने वापस आकर गुस्सा करना शुरू कर दिया और इसीलिए मुरीद अंदर से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। ये जगह ऐसी है कि हो सकता है इस बाबा के चारों तरफ जानने वाले हो, हमें कम से कम वक्त में यहाँ से निकलने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह का हमें या हमारी टीम को नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त हम लोग बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक सेकंड, आप लोग अभी जाएं यहाँ से। आप इनको लेके जाएं जल्दी से। हमें इनसे बात करनी है। आपको एक मिनट, झगड़ा नहीं करो।
इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लोग, इनके काफी सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। एक सेकंड, लड़ाई नहीं करो, अच्छा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे आओ, पीछे हो गए पीछे हो गए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो हकायक होते हैं जो आप लोगों को दिखाना जरूरी। बाबा से बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? नहीं बाबा से बात करना, क्यों नहीं करने? बात करनी दो, हम बात करके जाएंगे। नहीं इस वक्त आवाज दे रहे हैं, पूछो उससे पूछो। इस वक्त बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें इजाजत दी है कि मैं आके इनसे बात कर सकें। आपने चेहरा क्यों छुपा लिया? आपको बोला है ना, छोड़ो, हम चेहरा मेरा नहीं दिखाते किसी को। आपको क्या चेहरे से लेना, हम नहीं दिखाते मीडिया को चेहरा मेरा, जाओ इधर से। आप खवातीन आई हुई थी यहाँ पर और खवातीन इलाज के लिए आई हुई थी। आपने खवातीन से ऐसी क्या बात कही कि वो लोग नाराज हो गई? हम तो इलाज करते हैं, हम ये देखो हमारे रस रखे हुए, हम उल्लू से करते हैं, बिल्ली से करते हैं, खून से करते हैं, इनके खून रखे हुए हमारे, हम तो इलाज करते हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। खून से कैसे इलाज होता है? खून से कैसे इलाज होता है? इलाज होता है, हम इनको खून पिलाया जाता है, ये सिस्टम में हम जलाते हैं, इसको जलाते भी, इनको पिलाते भी, उल्लू को खून से सारा इलाज होता है। ये मुझे बताएं कि इलाज आखिर होता कैसे है? इलाज हम करते हैं, उल्लू से करते हैं, और ये उल्लू से बड़े इलाज होते हैं, और बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास इलाज करवाने के लिए, ठीक है। और हम ये करते हैं, ये उल्लू आम उल्लू नहीं है जो आप समझ रहे हो कि उल्लू ऐसे कैसे इलाज होता है। ये बाकायदा हम इसको देते हैं, इसका खून पीने से सारी अंदर की सफाई हो जाती है इंसान की, समझे। इसीलिए हम ये इलाज इसी से करते हैं, खून से। और ये उल्लू जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, ऐसे उल्लू है, ये ऐसे नहीं, ये कीमती उल्लू है। अगर उल्लू कीमती हैं बिल्कुल होंगे और आप इलाज भी करते होंगे, लेकिन खवातीन को खून देने का क्या मतलब है? खून से वो क्या करेंगी? खून से उनको खून पिलाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत खून उनके सर पे डालना पड़ता है और जिस्म पे लगाना पड़ता है। वो खवातीन कह रही हैं, वो नाराज क्यों हो रही है खवातीन? नाराज हमने तो उनको कोई ऐसी बात नहीं की, अब लाजिमी हम उल्लू के हिसाब से कर रहे हैं, हम तो अच्छी बातें इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए हम अच्छा सोच रही है, बिला वजह हमारे को गलत समझ रही है। यहाँ कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हम करते हैं, ये उल्लुओं से ही करते हैं। अब इनको हमने कोई ऐसी बात बोली तो नहीं, हमने तो यही बोला कि जो हम कहें कि आप वो करोगी। चेहरा न दिखाने की क्या वजह? आप इलाज करते होगे तो आप चेहरा भी तो दिखा सकते हो। चेहरा नहीं दिखाते हैं कभी भी किसी को, बस जो भी करते हैं फी सबिल्लाह करते हैं, हम अल्लाह के राह में करते हैं, और अच्छा काम करते हैं, और लोगों की अच्छाई के लिए हम करते हैं जो भी करते हैं। नाज़रीन ये अच्छाई के लिए करते हैं। इन्होंने उल्लू रखे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने बिल्ली रखी हुई है। एक शख्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इस वक्त ये पीछे जो है वो अल्लाहू मुसलसल कर रहा है। ये शायद इसलिए था कि ये यहाँ पर खवातीन को आना था, इलाज के लिए आना था, उनसे बड़ी रकम लेनी थी, और शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा होगा। दिखने में ऐसा ही लगता है, हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन आप खवातीन जब ये कह रही थी कि कपड़े उतारो, इसका क्या मतलब था? कपड़े उतारने का नहीं कहा, हमने उनको कहा कि सर से दुपट्टा ये हटाओ, कपड़ा हटाओ। कपड़े नहीं बोले कि कपड़े हटाओ, हमने बोला कपड़ा सर से हटाओ। रात में क्यों बुलाया? रात में इसीलिए बोला इलाज हम करते हैं रात में, और रात में ये होता है, दिन में नहीं होता। दिन में नहीं होता है। दिन में जो है ना हिसाब किताब कुछ और होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता है दिन में। उल्लू जो है ना रात को देखते हैं, और उल्लू ही हमारे को सब कुछ बताते भी हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शख्स जो है वो बाबा के पास है, ये मुसलसल जो है वो इस वक्त अल्लाहू कर रहा है, और इसके ऊपर एक आलम तारी हुआ है। लेकिन बहरहाल इसकी हकीकत है या झूठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बाबा जो है वो बहरहाल खवातीन यहाँ पर मौजूद थी, और खवातीन जो है यहाँ से गुस्सा करते हुए गई हैं। यहाँ पर खवातीन आती हैं, इलाज करवाते आती हैं। कितने खवातीन को फायदा होता है, होता हो ना होता हो, बाबाओं को जरूर फायदा होता है। आप इस वक्त यहाँ झुग्गी देख सकते हैं, ये झुग्गी है यहाँ की, और एक अजीब वहशत है यहाँ पर, अजीब स्मेल आ रही है, एक खतरनाक सी स्मेल आ रही है जो वहशत तारी कर रही है, और मुझसे इस वक्त बात नहीं की जा रही है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस वक्त अगर मैं ये इस झुग्गी के किसी भी, जो आपको बेल लग रही है, दरअसल की बेल नहीं है बल्कि ये मक्खियां हैं, ये इस वक्त पूरी झुग्गी में चारों तरफ जो है वो इस तरह के आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये बैठ के इलाज करते हैं। इधर जगह इसका इलाज हो रहा है, ऐसे कई आते हैं, कई हमारे पास और भी आते हैं, मीडिया वाले भी कई हमारे पास आते हैं इलाज के लिए। आप ये समझते हैं कि खवातीन को रात के वक्त बुलाना आप सही करते हो, और आप उसके ऊपर इस बात पे एतराज करो कि हम गलत आए? आप गलत आए, हमारा कोई टाइम नहीं होता, हम किसी भी टाइम गलत आए। आप यहाँ पर बैठ के सब कुछ सही कर रहे हो। हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम अपने काम के हिसाब से सही करते हैं। आप अपने काम के हिसाब से सही करते हो, हमारा काम है, हमारे काम में आप लोग मदाखलत नहीं करते। पुलिस ने पकड़ा है? पुलिस नहीं पकड़ती हमारे पास, कैसे आएगी पुलिस? हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है। यकीनन नाज़रीन जब तक कंप्लेंट्स नहीं होंगी तब तक पुलिस भी नहीं आएगी। यहाँ पर इस वक्त पहुँचने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि मुख्तलिफ नामधार के बाबा जो हैं वो किस तरह से कमाई के जरिया बनाते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं।
बहुत सारे इस तरह के बाबा होते हैं जो ढोंगी बाबा होते हैं, जो आवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं और इस तरह के जानवर रखे हुए होते हैं। कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है, और ये हमारे मोकिल हैं, इसके अंदर हमारे मोकिल होते हैं, ये कोई बिल्ली नहीं है। रखी हुई क्यों है? ये रखी है, ये मोकिल है, ये हमारे साथ समझ लो कि मोकिल है, ये बिल्ला है, बिल्ला ये मोकिल की सूरत में मोकिल है एक किस्म का हमारा, इसके अंदर मोकिल रखे हुए हमने। उल्लू के खून से आपने बताया पिलाते हैं, तो इसका खून कहाँ रखते हैं? ये खून हमारे पास ये होता है, इसको भी हमने यही इसका खून पिलाया हुआ, ये हमारे पास ये खून होता है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त खून इनके हाथ में लगा हुआ है, उल्लू का इनके मुताबिक ये खून है। आप इस वक्त ये मटका अंदर से देख सकते हैं जो पूरा खून हुआ हुआ है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर या तो जानवर का खून है या इनके मुताबिक ये उल्लू का खून है, जो इलाज करवाने आते हैं उनको पिलाते हैं, यानी ये खून पिलाते हैं, वो चीज जो हराम है वो पिला के ये इलाज करते हैं और इसके बाद ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि इनका इलाज सही है। मुसलमानों हाँ मुसलमान है, खून पिलाते हो फिर भी? हाँ खून पिलाते हैं, इनका इलाज जैसी खून से तो इनका इलाज इनकी जिंदगी बन सकती है, इनको भी हमने खून ही पिलाया हुआ है यही। अब इसका इलाज हो रहा है, इसका तकरीबन 4 उल्लू इसके ऊपर मैं काट चुका हूँ। नाज़रीन हम उल्लू वाले बाबा की झुग्गी में आखिरकार घुसकर बात करने में कामयाब हो गए। बाबा ने क्या बातें की और झुग्गी में मौजूद मुरीद जो तादाद में मुसलसल ज्यादा होते जा रहे थे उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्ली का बता रहे हैं कि इसके अंदर मौक्किल हैं, इसके अंदर जो है वो उल्लू का खून है और ये शख्स जो इस वक्त मेरे आपको बैक साइड पे नजर आ रहा था, ये जो है वो इस वक्त इनके मुताबिक ये इसका इलाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका इलाज हो रहा है या इसकी मजीद हालत बिगड़ रही है। बाबा को सिर्फ इस वक्त पैसों से मतलब है और पैसों की खातिर कुछ भी करने पे तैयार है। हम कोई पैसों से मतलब नहीं है, हम नेकी का काम करते हैं और अल्लाह की राह में करते हैं, जो भी करते हैं हम लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते हैं। नेकी का काम है, रात के वक्त खवातीन को बुला रहे हो और कह रहे हो कि नेकी का काम है ये। अगर हम गलत होते तो हम आपको बाहर से अंदर नहीं बुलाते, इसीलिए हमने वो औरतें हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये गलत है और हमारे मुरीदों को भी ये भटका रहे हैं तुम लोग। औरतों को जानते हो कौन थी वो? कोई भी थी, वो आए थे हमारे पास इलाज के लिए, हमने उनका इलाज करना। 1.5 लाख रुपए तुम मांग रहे हो और तुम कह रहे हो इलाज करता हूँ मैं। 1.5 लाख रुपए का कैसे इलाज करते हो? खून से बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं होंगे बच्चे पैदा? ये उल्लू हमारे पास कीमती उल्लू हैं, ये 1.5 लाख रुपए तो कोई बात नहीं, उल्लू ही हमारा एक जो है 1.5 लाख रुपए का, इसके ऊपर मैंने 4 उल्लू काटे हुए हैं, बचपन से फंसा हुआ था, इसको भी मैंने सही किया है। तो आपके सामने कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? घर वाले आते हैं पैसे देकर चले जाते हैं। इसके घर वाले आते हैं पैसे देकर चले जाते हैं, ऐसे और भी है जो सही होके गए यहाँ से। पूरा मेहमान गोट हमको जानता है, हम आज से नहीं कई टाइम से यहाँ से बैठे हुए। नाज़रीन इस वक्त हमें काफी देर हो चुकी है यहाँ पर और हो सकता है कि हमें कुछ फंसने के चांसेस, तो आप बाहर जाके देखते रहिए कि कोई इनका बंदा ना हो। ये बताओ कि ये शख्स जो है इसके घर वाले किधर हैं? इसके घर वाले इधर यहाँ करीब में ही है, वो आते हैं मिल के जाते हैं इससे। ये इलाज सीखा कहाँ से? ये हमारे बाप दादाओं का है। आप दादा भी उल्लुओं का खून पिला रहे थे लोगों को, आप भी जो है उल्लुओं का खून पिलाते हो लोगों को? हाँ हम लोग उल्लू वाले बाबा से मशहूर हैं। लेकिन कोई उल्लू वाला बाबा है, कोई बिल्ली वाला बाबा है, कोई कुत्ते वाला बाबा है, कोई रेडी वाला बाबा है, बस नाम बदल दो, बाबा साथ में लगाओ, किसी भी तरह की दुकान खोलो, काम आपका चमक जाएगा। ये लोगों को देखने की जरूरत है, लोगों में शऊर पैदा करने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों के पास अगर जाएंगे तो यकीनन आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। ये मैं सबको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सही काम करते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो भी बदनाम हो जाते हैं। इस वक्त इसका इलाज चल रहा है, ये 24 घंटे ऐसे ही करता रहेगा? ये इसका इलाज चल रहा है, ये इसको हमने खून पिलाया हुआ है। नहीं लग रहा कि ड्रामा कर रहा है? ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। आप तो ऐसे ड्रामा समझते हो, जब आपके साथ होगा तो आपको भी यही पता चलेगा क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप सही हो इसीलिए बोलते हो कि ड्रामा हो रहा है। ड्रामा नहीं कर रहे क्या ये? ये ड्रामा मामा नहीं है, जाओ तुम इधर से, तुम नहीं समझते, ये ड्रामा नहीं है, जाओ इधर से, बस अभी निकलो। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। जिसको आप ड्रामा समझ रहे हो ये हकीकत है। जाओ जाओ इधर से। मुरीद एकदम से आ गए, बाहर आ जाओ, बाहर आओ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफी सारे मुरीद अंदर हैं। बाकियों के नाज़रीन इस वक्त कैमरामैन बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। नाज़रीन इस वक्त हम लोग अंदर से तो निकल आए क्योंकि अंदर काफी सारे लोग आ चुके थे और इस वक्त हमारे यहाँ रुकना भी ज्यादा सही नहीं। लग जाएगी, क्या कर रहे हैं? इसको पीछे करो, अभी पुलिस को बुला के हम यहाँ पर हंगामा करवा देंगे, इसको पीछे करो। नाज़रीन इस वक्त कैमरा पीछे करो, जा रहे पीछे, जा रहे। इस
सिचुएशन ये थी कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह के बाबा जो होते हैं वो किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लोग ढोंगी बाबा होते हैं जो हंगामा कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ है। जा रहे हैरत की बात है कि यहाँ पर उल्लू वाले बाबा बैठे हुए होते हैं। पुलिस को नहीं पता, अल्लाह हुकाम को नहीं पता, जबकि यहाँ के हर आम आदमी को पता है कि उल्लू वाले बाबा बैठे होते हैं और किस तरह से इलाज कर रहे होते हैं। ये उनके पास काफी सारे जानवर मौजूद थे, उल्लू मौजूद थे। उल्लू बहुत वो प्रीशियस किस्म के उल्लू थे जो यहाँ पर पकड़ना अलाउ नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास वो उल्लू मौजूद थे और वो काफी कीमती उल्लू थे। ये किस तरह से इनके पास पहुंचते हैं, किस तरह से स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि यकीनन ये उल्लू के खरीदार नहीं हो सकते और इन्होंने खरीदे नहीं होंगे, बल्कि स्मगलिंग के थ्रू ही इनके पास पहुंचे होंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के इलाके में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उसकी कंप्लेंट्स करें, क्योंकि अगर आप लोग कंप्लेन करेंगे तो यकीनन कई घराने बर्बाद होने से बच जाएंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल। ये कुफर के अड्डे चल रहे हैं, कहा हो इस्लाह की तहरीक चलाने वालों, तुम्हें अरब मुल्क नजर आते हैं, अपने मुल्क के ये बदमाश नजर नहीं आते। तुमने यहां तौहीद का काम कर लिया। शेख डॉक्टर सालेह अबूद फरमाते हैं ये बात अच्छी महसूस होती है कि हम तबलीगी जमात को मिज़ान अदल में तोड़ने की कोशिश करें। ये जमात बाहर से वारिद हुई है, इसका अहले मक्का से, ममलकत सऊदी अरबिया से, प्यारे हबीब की प्यारी सरजमीन से, न विलादत की सरजमीन न दफन होने की सरजमीन, इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये मेड इन इंडिया जमात है, ये मेड इन पाकिस्तान जमात है। ये बाहर से वारिद हुई है और जजीरा अरब के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल ये दावत इल्लल्लाह का नारा लगाकर जजीरा अरब में दाखिल हुई। हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम अपने मुल्क से शिर्क, बिदअत और जहालत को खत्म कर चुके हो? तुम्हारे मुल्क से शिर्क और बिदअत खत्म हो गई, जहालत खत्म हो गई। इंडिया के अंदर अभी तक जहालत का ये हाल है। बाबा असलम जानते हो इंडिया वाले भाई, बाबा असलम को, बाबा असलम जो लोगों का इलाज करता है, कुर्सियां उनके सर पे मार मार के, लाइन से लोग बैठे हैं और 15-20 आदमी कुर्सियां पकड़ाने वाले, कुर्सी मारी वो गिरी, अगले को मारने के लिए पहुंच गया। ऑपरेशन करता है जीते जागते बंदे को बगैर बेहोश किए। कहते मेरा इतने दर्द होता है, वो अपना कैंची उसके अंदर डाल के काट के और 5-10 बंदों से पकड़ते हैं और उसकी रूह बेचारे की परवाज करने के करीब होती है और उसके अंदर से रगों का इतना बड़ा गोला निकाल के कहता है ए तेरी सास ने तवीज कराया, ऐसा सारे काट देते हैं। वफा का खा जाने उसको सिला दिया, उसकी वफा